वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे हीट एंड इट्स इफेक्ट्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज हीट। तो हीट क्या होती है हम देखते हैं। व्हाट इज हीट? Until the end of the 18th century, scientists believed that heat was a kind of fluid which was gained by a body when it was heated and lost when it was cooled. This fluid was named caloric. However, this theory could not explain several observations. For example, why two bodies when rubbed together become warm. So, 18th सेंचुरी तक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो हीट है उसे वो बिलीव करते थे कि वो एक तरह का लिक्विड होता है। तो जब बॉडी हीट होती है, वो गेन करता है। जब बॉडी हीट होती है, कूल होता है। जब बॉडी गेन करती है तो वो हीटेड होती है, और जब लॉस्ट करती है तो वो कूल हो जाती है। और इसी फ्लूइड का नाम दिया था उन्होंने कैलोरिक। लेकिन ये थ्योरी बहुत सारे सवालों को जवाब नहीं दे पाई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि क्यों दो बॉडी जब रब की जाती हैं तो वो वार्म हो जाती हैं। द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय काउंट रमफोर्ड एंड जेम्स प्रेस्कॉट in the beginning of the 19th century established that heat is a form of energy known as thermal energy. Many other forms of energy can be converted to heat energy, and heat energy can be converted to other forms of energy. For example, when you rub your hands together, mechanical energy gets converted to heat energy and your hands become warm. When fuel is burned, chemical energy stored in the fuel gets converted to heat energy. The heat energy of burning petrol is converted to mechanical energy in a car. In an electric heater, electrical energy is converted to heat energy. In a powerhouse, heat energy of burning coal is converted into electrical energy. When a solid, a liquid or a gas is heated, its molecules gain energy and start moving faster. The more we heat the substance, the faster its molecules move. Heat energy is therefore the energy of movement of molecules. So what is heat? Heat is a form of energy. It is also known as thermal energy. Heat energy is therefore the energy of movement of molecules, because when a solid, a liquid or a gas is heated, its molecule gain energy and start moving faster. The more we heat the substance, the faster its molecule move. Therefore, heat energy is the energy of movement of molecules. So, many other forms of energy can be converted to heat energy, and heat energy can be converted to other forms of energy. So, when we rub our hands together, mechanical energy is converted to heat energy. When fuel is burned, chemical energy is converted to heat energy. In an electric heater, electrical energy is converted to heat energy. So, in this form, heat energy is converted by other energies. So, the heat energy of burning petrol is converted to mechanical energy.
in a car, in powerhouse. Heat energy of burning coal is converted to electrical energy. So, in this chapter we are going to study what is heat, effects of heat, expansion in solids, liquids and gases. One more topic is there, temperature and its measurement, that we will do in next video. So next our topic is effects of heat. Fill a vessel up to the brim with water. Drop a few pieces of vegetable in it. Heat the vessel and observe the changes that happen. You will observe the following. What you will observe? The water becomes warmer, that is, its temperature rises. Thus, heat causes increase in temperature. As the water heats up, some of its overflows, that is, its volume increases. Thus, heat causes expansion. As the water boils, steam comes out of the water, that is, water changes its state. Thus, heat causes changes of state. After the water has boiled for a few minutes, the vegetables become soft and their taste changes. That is, the vegetable gets cooked. Cooking of vegetables is a chemical change. Thus, heat causes chemical changes. If the water is examined under a powerful microscope, before and after boiling, it is found that many bacteria that were earlier present in the water have died. Thus, heat affects living organism. This is because every organism can tolerate a definite range of temperature. Its activities and survival get affected at temperatures higher or lower than the normal temperature. So, effects of heat में क्या करना है? हमें एक वेसल लेना है, कोई भी बर्तन, उसके मुंह तक पानी भरिए और उसमें कुछ सब्जियां डाल दीजिए और उसे गरम करिए. उसे आप गरम होने के लिए रख दीजिए. तो फिर आप क्या क्या चेंजेस उसमें देखते हैं? आप उसमें देखेंगे कि जो पानी है वो गरम हो चुका है. इसका मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हीट कॉजेस इंक्रीज इन टेम्परेचर. नेक्स्ट, जैसे जैसे पानी गर्म होगा वैसे वैसे बर्तन से बाहर आने लगेगा. इसका मतलब कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. तो इससे हमें क्या समझ में आएगा कि हीट कॉजेस एक्सपेंशन. नेक्स्ट, फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे पानी बॉईल होगा उसमें से स्टीम निकलेगी. तो पानी किस स्टेट में था? पानी लिक्विड स्टेट में था और जो स्टीम निकल रही है वो किस स्टेट में है? वो गैस स्टेट में आ गई है. दैट इज वाटर चेंजेस इट्स स्टेट. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हीट कॉजेस चेंज ऑफ स्टेट. वाटर लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है. आफ्टर दैट, आफ्टर द वाटर हैज बॉइल्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए जब पानी बॉइल हो जाता है तो उसमें डाली हुई जो वेजिटेबल्स होती हैं वो क्या होती हैं? सॉफ्ट हो जाती हैं. उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और सब्जियां पक जाती हैं. तो ये इससे हमें क्या समझ में आता है? कुकिंग ऑफ वेजिटेबल जो है उसमें क्या होता है? केमिकल चेंज होता है. तो इससे हमें ये पता चलता है कि हीट कॉजेस केमिकल चेंजेस. हीट कॉजेस केमिकल चेंजेस.
देन जब हम पानी को बॉईल करते हैं, उसके बाद का कुछ वाटर और बॉईल करने के पहले का पानी, अगर हम बिफोर और आफ्टर जो वाटर है उसको पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो हम देखेंगे कि जो हमारा बॉईल करने से पहले वाटर था उसमें हमें बहुत सारे बैक्टीरिया या लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए, लेकिन बॉईल होने के बाद क्या हुआ, उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं थे। तो ये शो करता है कि हीट जो होता है वो इफेक्ट्स करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी। अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना टॉलरेट करने का, टेम्परेचर टॉलरेट करने का अलग अलग रेंज होता है। उनका सर्वाइवल पॉइंट जो होता है वो अलग अलग होता है। नॉर्मल से किसी का हायर होता है, किसी का लोअर होता है। तो इसीलिए आफ्टर बॉइलिंग ऑफ वाटर देयर इज नो microorganisms present in the water, thus heat affects living organism. Then our next topic is expansion. Expansion. So suppose that a number of children are standing in a corner of a hall. They are moving around a little to talk to each other. Suddenly music is switched on. The children start dancing and moving around more. Naturally, they will spread out more and occupy a larger part of the hall. तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे के बता रहा है कि सपोज कुछ बच्चे एक हॉल के कॉर्नर पे खड़े हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, बट अचानक से म्यूजिक ऑन हो जाता है और सारे बच्चे डांस करने लगते हैं। तो डांस करते करते वो हॉल में चारों तरफ घूमने लगेंगे। इससे ये समझ में आता है कि वो ज़्यादा जगह ले रहे हैं हॉल का। पहले वो एक कॉर्नर पे खड़े थे और वो बस थोड़ा बहुत मूव कर रहे थे। अब जब म्यूजिक स्टार्ट हो गया, वो डांस करने लगे, तो वो पूरे हॉल में डांस कर रहे हैं, स्प्रेड हो गए हैं। तो सिमिलरली व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस, द मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल increases. This increase the average distance between the molecules. Therefore, the space occupied by the molecules, that is the volume of the substance, increases. We say that heat causes expansion. तो जिस तरीके से जो चिल्ड्रन है यहाँ पे, सपोज वो मॉलिक्यूल्स हैं, तो पहले वो थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें हीट किया गया, मतलब म्यूजिक स्टार्ट किया गया, तो वो अचानक से तेजी से पूरे हॉल में मूव करने लगे। तो सिमिलरली यही होता है मॉलिक्यूल्स के साथ भी। जब किसी सब्सटेंस को हीट किया जाता है तो उनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और यही होता है एक्सपेंशन। So when we heat a substance, the movement of its molecules increases. This increases the average distance between the molecules. Therefore, the space occupied by the molecules, that is the volume of the substance, increases. We say that heat causes expansion. तो अब हम पढ़ते हैं expansion in solids. तो expansion अब पढ़ेंगे हम solids पे। We can perform the following activity to show expansion in solid. तो एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम। तो चलिए बताती हूँ क्या एक्सपेरिमेंट। जैसे टेक अ मेटल रॉड अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, ले इट हॉरिजेंटली ऑन 2 वुड्स सपोर्ट, keep one of its end against a
wall. Rest the other end on the round pencil. Attach a paper pointer to the pencil. Hit the rod. You will notice that the paper pointer rotates to the right. Why? The more you hit the rod, the more the pointer will turn to the right. क्योंकि उसके molecules जो हैं रॉड के वो एक्सपैंड होंगे, मॉलिक्यूल्स मूव करने लगेंगे तो रॉड भी हिलेगी और सॉलिड्स एक्सपैंड और हीटिंग. द टर्निंग ऑफ द पेंसिल shows that it has been rolled. This is because only when the rod expands on heating, this shows that solids expand on heating. तो हमने दो वुडन सपोर्ट लिया और उसके ऊपर रॉड रखा और रॉड का लास्ट एंड जो है उसे एक वॉल से अगेंस्ट पे रखा और एक जो है दूसरे सपोर्ट पे रखा हुआ उसके नीचे पेंसिल रख दी और फिर उस रॉड को हमने हीट किया और उस पेंसिल के पेपर पॉइंटर अटैच किया उस पेंसिल के साथ, इसलिए क्योंकि हमें पता चल सके कि वो पेंसिल रोटेट कर रही है कि नहीं. और जैसे जैसे रॉड हीट होती जाएगी वो पेंसिल घूमना शुरू कर देगी जिसके वजह से जो पॉइंटर है पेपर पॉइंटर वो भी हिलने लगेगा. इससे आपको पता चल जाएगा कि वो पेंसिल रोटेट कर रही है. तो टर्निंग ऑफ पेंसिल shows that it has been rolled. This is possible only when the rod expands on heating. This shows that solid expand on heating. Measurements of expansion made on different solids show that different solids expand by different amounts for the same increase in temperatures. So this experiment shows solids expands on heating. Next is expansion in liquids. We know that the molecules of a liquid are not so firmly bound to each other as in a solid. Therefore, on heating their vibration increase more than the vibration of a molecules of solids. The result is that liquids expand more than solids on heating. तो जिस तरीके से सॉलिड में किसी सॉलिड चीज में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वेरी वेरी क्लोज होते हैं, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स इस तरीके से पैक होते हैं, बट लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं. तो इसलिए जब हम उन्हें हीट करते हैं तो उनमें वाइब्रेशन ज़्यादा होता है और लिक्विड में एक्सपेंशन ज़्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन में. सो अब हम एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ ये देखने के लिए कि एक्सपेंशन इन लिक्विड में. Fill a flask up to the brim with water. Take a rubber cork with a hole in it and insert a narrow tube into the hole. Fix the cork firmly in the mouth of the flask. The liquid will rise a little in the tube. Note the level of the liquid. Heat the liquid. You will notice that the level of the liquid in the tube goes down a little and then start rising. It goes down initially as the flask gets heated first and expand. When the heat reaches the liquid, it expands and its level in the tube goes up. Cool the liquid to normal temperature. The level will go down again. So, हमने दो फ्लास्क लिया और फ्लास्क में हम लिक्विड लेंगे. दो अलग अलग तरह का हमने लिक्विड लिया. उसके बाद आप पहले एक ही फ्लास्क लीजिए, नॉर्मल उसमें वाटर डालिए
और ऊपर तक उसके मुंह तक भरना है। उसमें एक कॉर्क लगाना है, कॉर्क के साथ एक ट्यूब, रबर कॉर्क लगाना है और उसके साथ एक ट्यूब, पतली ट्यूब को आप कॉर्क के अंदर इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद आप वाटर को हीट करिए। थोड़ी देर आप देखेंगे कि वाटर डाउन होगा, उसके बाद अचानक जब हीट हो जाएगा तो राइज करेगा और जो ऊपर लगी हुई ट्यूब है वो फिल हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वाटर एक्सपैंड होता है, तभी तो पानी बाहर आ गया। और जब हम वापस ऑफ कर देंगे हीट तो लिक्विड कूल हो जाएगा और वापस से लेवल नॉर्मल जो था आ जाएगा, लेवल डाउन हो जाएगा। और सेम एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड इफ द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड यूजिंग डिफरेंट लिक्विड सच एज केरोसिन एंड ऑयल, इट इज फाउंड दैट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड फॉर द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अलग अलग लिक्विड में सेम टेम्परेचर पे इंक्रीज इन जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन है वो डिफरेंट होता है। किसी में उसी टेम्परेचर पे ज़्यादा होता है, किसी पे उसी टेम्परेचर पे कम होता है। तो अलग अलग लिक्विड का अलग अलग एक्सपेंशन का अमाउंट होता है। तो इन एक्सपेरिमेंट से और इससे हमें समझ में आता है कि लिक्विड्स एक्सपैंड मोर देन सॉलिड्स ऑन हीटिंग। तो लिक्विड्स एक्सपैंड्स more than solids। रीजन वही है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं और लिक्विड्स के थोड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए उनमें एक्सपेंशन जल्दी होता है और ज़्यादा होता है। जैसे वो हॉल वाला, बच्चों का हॉल वाला, जो बच्चे अगर हॉल के एक कॉर्नर पे थे तो उन्हें पूरे हॉल में फैलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन अगर बच्चे हॉल में थोड़ी थोड़ी दूरी पे चारों तरफ फैले हुए होते तो म्यूजिक शुरू होते ही उनको हॉल कवर करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो बस सेम वही लिक्विड और सॉलिड के साथ होता है। अब हम एक्सपेंशन देखते हैं गैसेस में। तो on heating a gas, vibration of its molecules increases. Since the molecules are not bound to each other at all, the average distance between the molecules increases considerably. Hence, the expansion will be more in case of gases than in liquids or solids. Thus, gases expands more than liquids and solids. क्यों? On being heated, क्योंकि सॉलिड में हमें पता है मॉलिक्यूल्स इस तरीके से टाइटली पैक्ड होते हैं, थोड़े से लूज होते हैं। लिक्विड्स में और गैस में तो और भी दूर होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली बाउंड नहीं होते हैं, इसलिए इनमें एक्सपेंशन और बहुत तेजी से होता है हीट करने पे। यही वजह है कि लिक्विड और सॉलिड से ज़्यादा फास्ट होता है एक्सपेंशन गैसेस में। तो हम एक एक्सपेरिमेंट एक्सपेंशन ऑफ गैस के लिए भी कर सकते हैं। जैसा फ्लास्क हमने प्रीवियस लिया था, सेम वैसा ही फ्लास्क हम अभी लेंगे और उन फ्लास्क को हमें क्या करना है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा पोजीशन में लगाना है स्टैंड के साथ। और उसमें सेम जैसे उसमें ट्यूब डाला था कॉर्क के अंदर, सेम इसमें भी वैसा ही होगा और उसे इन्वर्टेड करना है। और उसके बाद एक ग्लास में बीकर में जिसमें वाटर फिल हो डिप कर देना है। उसके बाद जो टॉप पोर्शन है फ्लास्क का, उसे हमें हीट करना है। और जैसे ही वो हीट होना शुरू हो जाएगा, हम देखेंगे कि जो बबल्स हैं वो उस वाटर में आ रहे हैं। बबल्स ऑफ एयर कैन बी सीन इन द वाटर। क्यों आ रहे हैं?
क्योंकि जो गैस है, एज जो गैस वहां पे कौन सी प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है. एज द एयर इन द फ्लास्क एक्सपैंड्स it escapes out of the flask through the tube into the beaker containing the water. इसलिए bubbles दिखाई पड़ रहे हैं. फिर cool the flask as the air inside the flask contracts, the water rise up the tube. This shows the gas like air expands on heating and contracts on cooling. तो ये एक्सपेरिमेंट भी शो करता है एक्सपेंशन ऑफ गैस. अब देखते हैं एक्सपेंशन अराउंड अस. तो अब हम देखते हैं एक्सपेंशन अराउंड अस. द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स कैन बी पुट टू यूज. द ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम यूजेस द फैक्ट दैट different solids expand by different amounts on heating. The alarm contains two metal strips, one of iron and the other of brass, firmly bolted together. Brass expands more than iron on heating. Therefore, when these bimetallic strips get heated because of fire, it bends on the side of iron. As it's bent, the circuit of the electric bell is completed. The bell starts ringing to give the alarm. As the fire is put out, the strip gets cooled and strengthened again. This causes the circuit to break, the switching of the alarm. तो ये था एक एग्जाम्पल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स का. नेक्स्ट देखते हैं. द मेटल कैप्स ऑन ग्लास बॉटल्स कैन बी लूजन बाय पोरिंग हॉट वाटर ओवर द मेटल कैप. द मेटल कैप एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड लूजन. तो मेटल कैप किसी बॉटल पे, जो ग्लास बॉटल पे लगी होती है, उसे लूज करने के लिए अगर उस पे गर्म पानी डाला जाए तो जो मेटल है वो एक्सपैंड करेगा और लूज हो जाएगा और इजीली कैप रिमूव हो जाएगा. However, at many places, expansion causes problem. In summer, electric cables between two poles expand and sag. In winter, they contract and become taut. If cables are laid in summer, they must be left a little loose to allow for contraction during winter. If this is not done, they may break on contraction इन विंटर. तो इलेक्ट्रिक केबल्स जो होते हैं वो दो पोल्स के बिटवीन में वो क्या होते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं समर के टाइम पे और कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ठंड में. तो इसलिए उनको थोड़ा सा अगर लूज नहीं रखा गया तो विंटर में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और वो ब्रेक हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे. इसलिए थोड़ी सी तारों को लूज रखा जाता है. जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल है रेलवे ट्रैक. The railway tracks over which trains are run are made of iron. During summer, the iron expands. तो आपने हमेशा देखा होगा रेल की पटरियां, रेलवे ट्रैक जो होता है उनके बीच में आपने हमेशा ट्रैक्स के बीच में हल्का सा गैप देखा होगा. वो किस लिए होता है, क्योंकि समर के टाइम पे आयरन एक मेटल होता है, वो एक्सपैंड करता है हीट से. टू अलाउ दिस एक्सपेंशन, स्पेस हैज टू बी लेफ्ट बिटवीन टू सेक्शन ऑफ द ट्रैक्स. इफ दिस इज नॉट डन, एक्सपेंशन ऑफ द ट्रैक कैन कॉज देम टू बेंड. दिस कैन कॉज सीवियर एक्सीडेंट. तो जब गर्म होता है तो ये रॉड्स होती हैं, ये आयरन की बने हुए होते हैं, ये एक्सपैंड करते हैं, इसलिए यहाँ पे गैप छोड़ा जाता है. अगर गैप ना छोड़ा जाए और वो एक्सपैंड हो जाए तो वो बेंड भी हो सकते हैं, जिससे ट्रेन के एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं. इसलिए थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है रेलवे ट्रैक्स के बिटवीन. और एक और एग्जांपल देखते हैं. इन अ सिमिलर वे, इन स्टील ब्रिजेस, वन एंड इज मेड टू रेस्ट ऑन रोलर्स with enough space provided for expansion during summer. Next, when very hot liquid is poured in a glass tumbler, the tumbler sometimes cracks. तो
जब कभी आपने देखा होगा कि गरम गरम लिक्विड, चाय, दूध, कुछ भी गरम गरम अगर हम ग्लास के, जो ग्लास होता है, ग्लास के बर्तन में या ग्लास के कंटेनर में हम डाल देते हैं, तो कभी कभी कप हो गया या ग्लास हो गया, क्या होता है, क्रैक हो जाता है. This happens because the inner wall gets heated first and expands, but the outer wall remains unchanged. The resulting strain cracks the glass. These days, however, special type of glass which expand very little when heated are available. Due to their low expansion, they do not crack even very hot liquid is poured in them. One such glass is Pyrex glass. तो जब हम ग्लास में कोई हॉट लिक्विड डालते थे तो जो इनर वॉल थी वो क्या होती थी, हीट हो जाती थी और वो पहले एक्सपैंड होती थी और उसमें क्रैक्स आ जाता था. लेकिन अब जो है न्यू तरह के ग्लास आने लगे जिनमें एक्सपेंशन कम होता है, जिसकी वजह से वो इजीली क्रैक नहीं होते हैं जब हम उसमें गर्म लिक्विड डालते हैं. तो उस टाइप का ग्लास का एक एग्जांपल है पायरेक्स ग्लास. पहले टाइम पे जब भी मग में, कप में या ग्लास में कोई भी लिक्विड पोर करते थे तो वो इजीली क्रैक हो जाता था और ग्लास खराब हो जाते थे. लेकिन आजकल आप हॉट लिक्विड डालते हैं तो ना कप में क्रैक्स आते हैं और ना ही ग्लासेस वगैरह में. वो इस वजह से कि अब ऐसे ग्लास यूज होने लगे हैं जिनका जो है लो एक्सपेंशन होता है जब उन्हें हीट मिलती है. तो आज हमने हीट एंड इट्स इफेक्ट में हीट, व्हाट इज हीट, इट्स इफेक्ट, एक्सपेंशन in solid, liquid and gases, expansion around us देखा. और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अबाउट टेम्परेचर, क्योंकि हीट है और हीट है तो टेम्परेचर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम देखेंगे, टेम्परेचर. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.